Hello students, I am Deepika Sharma, your science educator from David Academy. Today we are going to learn about a very interesting topic of your science subject is metals and non-metals. We all know that there are 118 elements in our periodic table, in which some are of metals, some are non-metals and some are in between the metals and non-metals. कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया. कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी मेटालिक नेचर की थी, यानी कि वो शाइनी है, लस्ट्रस है और सॉलिड है. और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जिनकी प्रॉपर्टी किस तरह की दिखाई देती है, नॉन मेटल जैसे कि नॉन शाइनी है, डल अपीयरेंस है, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. इन पीरियोडिक टेबल देयर आर some element which are lie in the right side of the periodic table. We say that these are non-metals, and elements which are lie on the left side of the periodic table or bottom of the periodic table, we can say them as metals. And there is a staircase. ये जो सीढ़ियाँ सी आपको दिखाई देगी, there is a staircase. जो मेटल पीरियोडिक टेबल में staircase के बीच में आ रहे हैं, we give the name of another category which is called metalloid, because इनकी प्रॉपर्टी कैसी है, इंटरमीडिएट है, मेटल्स और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी है. देयर आर 118 एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इन विच अप्रोक्सीमेट 93 एलिमेंट्स आर मेटल or 18 are non-metal and 7 are which has a property which is intermediate between the metals and non-metals, which is called metalloids. तो देखो मेटल्स जो है कैटेगराइज की हमने उनकी, अब स्टेट के बेसिस पे भी हमने कुछ मेटल कैटेगराइज की कि कितने मेटल ऐसे हैं जो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैसी स्टेट में है. मोस्ट ऑफ दी जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में ही होते हैं. ओनली देयर इज अ वन metal which is found in the liquid state which is called mercury. Only one metal. नेक्स्ट इज कैटेगरीज नॉन मेटल. देखो नॉन मेटल क्या है, जिनके अंदर मेटल जैसी प्रॉपर्टी नहीं है, जो सॉलिड नहीं है. इसका मतलब वो क्या है, मोस्ट ऑफ दी नॉन मेटल्स आर गैसेस. ठीक है, वो गैसियस फॉर्म में. तो देखो कुछ सॉलिड फॉर्म में भी है, तो ये तीनों फॉर्म में ही होते हैं. देयर आर 5 non-metal which are found in a solid state. Only one non-metal which is called bromine found in a liquid state, and rest of the other 12 non-metal found in a gaseous state. And there are 7 metalloids in this case. Now we will see the physical properties of metals and non-metals one by one. What are the physical properties of metals? First we see them. Okay, first property is metals are lustrous. Lustrous means having shine, जो चमकता है. लस्ट्रस मीन शाइनी सरफेस. फॉर एग्जाम्पल जो गोल्ड है, सिल्वर है, ये जो मेटल है, इनकी सरफेस कैसी होती है, शाइनी होती है. मोस्ट ऑफ दी जितनी भी मेटल्स हैं उनकी सरफेस कैसी दिखेगी आपको, शाइनी सरफेस दिखेगी. मेटल का यूज किया जाता है फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स और यूटेंसिल्स. ओके, just because of this metallic luster. Next property of metal is these metals are good conductor of electricity. We all know that metal have a lots of free electrons in them. जब electricity कब generate होती है, जब free electron क्या करते हैं, move करते हैं. Due to the movement of these free electrons, or we can say the due to the flow of these free electrons, electricity generates and conductivity happens in any materials, okay, which allow to pass electricity, that we call it a conductor. तो metals जो होती है, metals are the good conductor of electricity because they allow to pass electricity easily through them. Okay, तो metals क्या होती है, these are the good conductor of electricity and heat also. Metals are good conductor of heat. We all know that metals जो है, metal के हम क्या बनाते हैं, utensils बनाते हैं, cooking utensils बनाते हैं, pan बनाते हैं, saucepan बनाते हैं. क्यों बनाते हैं, just because of this property कि metal जो है अपने अंदर से conduction, heat conduction अच्छे से होने देती है. ठीक है, इस property के कारण हम metal के utensils बनाते हैं. तो देखो metals are good conductor of heat. This is the reason यूज मेटेलिक यूटेंसिल फॉर द कुकिंग. ईजीली क्या होते हैं, वो हीट अप हो जाते हैं और हमें कम एनर्जी में हमारा खाना कुक हो जाता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट आर द कंडक्टर्स? कंडक्टर्स आर द, वी ऑल नो दैट कंडक्टर आर द मटेरियल व्हिच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, व्हिच आर कॉल्ड कंडक्टर्स. ओके, तो हमें पता है मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इन विच सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट due to the silver is very expensive metal,
Silver and gold are the good conductor of best conductor of the electricity, but they are so expensive. That's why we make the wire of the copper metal. Next property of metal is they are malleable. Malleable means on beating metal with a hammer, it can convert into a thin sheet. आपने देखा होगा बहुत सारी आयरन की शीट या फिर एल्यूमिनियम फॉयल जिसमें आप खाना आपका पैक करते हो, है ना, आप या फिर आप गोल्ड के भी गोल्ड फॉयल देखते हो, तो आप ये मेटल के इस प्रॉपर्टी के कारण हम क्या कर सकते हैं, मेटल को ऑन बीटिंग विद हैमर वी कैन कन्वर्ट इनटू अ थिन शीट. मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर. व्हाट इज डक्टिलिटी? डक्टिलिटी मीन्स व्हेन वी स्ट्रेच द मेटल इट विल कन्वर्ट इनटू अ थिन वायर और वी कैन ड्रॉ इनटू अ थिन वायर. दिस इज कॉल्ड डक्टिलिटी. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी. मीन्स आप मेटल को स्ट्रेच करके जब आप उसको खींचोगे तो यू कैन कन्वर्ट इनटू अ थिन वायर. तो देखो मेटल का थिन वायर बना के हम उसके बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके. फॉर एग्जांपल जैसे हम इलेक्ट्रिक वायर बनाते हैं, प्लस और क्या क्या बनाते हैं हम, जितने भी आपकी गोल्ड चेन बनती है वो भी इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके बनती है कि आप क्या कर सकते हो, मेटल को स्ट्रेच करके उसके बहुत ज़्यादा थिन वायर बना सकते हो. जैसे कि आपको पता है 1 ग्राम गोल्ड की हेल्प से आप 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज सोनोरस. मेटल्स आर सोनोरस. सोनोरस मीन्स व्हेन मेटल स्ट्रक टू समथिंग इट विल प्रोड्यूस अ साउंड, रिंगिंग साउंड. जैसे आपने देखा होगा डोर बेल में साउंड आता है, या फिर पहले के टाइम में जब गोल्डन टाइम्स में जब छुट्टी होती थी तो स्कूल में जो बेल प्रोड्यूस करती थी जो साउंड, या फिर आप देखते हो कि अभी भी टेम्पल्स में जो बेल देखते हो तो क्या होता है, जैसे ही बेल स्ट्रक करती है किसी चीज़ से वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है ना. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरिटी और दिस virtue is called sonorous. Now the next property or next physical property of metal is solid. Most of the metals are found in solids. We all know that metals क्या होती है, metals बहुत ज़्यादा dense होती है, उनके जो atoms है वो बहुत ज़्यादा पास होते हैं, that's why वो बहुत ही compact होती है. तो क्या होती है, वो solid nature की होती है. Except there is an exceptional case that मर्क्यूरी मेटल विच इज एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. देखो जो मर्क्यूरी है कहाँ यूज होता है इसका, इन अ थर्मोमीटर. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज दे आर हार्ड इन नेचर. इजीली ब्रेकेबल नहीं होती है, बहुत ज़्यादा वो हार्ड होती है, सॉलिड होती है, बट ये जो हार्डनेस है वो वेरी करती है मेटल टू मेटल. जैसे आप बोलेंगे कि मैम आयरन तो हार्ड होता है बट एल्यूमिनियम इतना हार्ड नहीं होता है, बिकॉज ये वेरी करता है, मेटल टू मेटल हार्डनेस वेरी करती है. तो देखो लेकिन कुछ जो मेटल है देयर इज एन ऑल्सो एक्सेप्शनल केस कि कुछ मेटल फॉर एग्जाम्पल की सोडियम और पोटेशियम है, ये मेटल क्या होती है, दे आर सॉफ्ट इन नेचर. वी कैन कट देम इवन विद द हेल्प ऑफ नाइफ. हम आप चाकू की हेल्प से उसको कट कर सकते हो, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है सोडियम एंड सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, दे आर सो सॉफ्ट. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज टेंसाइल स्ट्रेंथ. देखो व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि आप किसी लोड को कितना बियर कर सकते हो, लोड बियरिंग स्ट्रेंथ कितनी है. तो मेटल्स की लोड बियरिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, दे हैव अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. दैट्स वाई क्या करते हैं, इसके हम यूज़ करते हैं इस मेटल का, बिकॉज मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो हम क्या करते हैं इसका यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन, ब्रिज बनाने में और मशीनरीज बनाने में. देखो यू कैन सी इन द पिक्चर की जो इतना हैवी जो ब्रिज होते हैं वो कितना हैवी लोड बियर कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी की टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसके अंदर लोड बियर करने की प्रॉपर्टी है. तो देखो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम आयरन के क्या बनाते हैं, ट्रैक, रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं. रेल कितनी हैवी होती है, ट्रेन कितनी हैवी होती है, और ये आराम से इजीली जो आयरन की जो हम ट्रैक्स बनाते हैं वो उसको बियर कर पाते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. देखो मेटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, उनके जो एटम्स हैं वो एकदम क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, वो बहुत पास है. तो आपको पता है अगर जब कोई एटम बहुत पास होते हैं किसी मटेरियल के अंदर या किसी मैटर के अंदर, तो क्या होगा, उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने में भी बहुत ज़्यादा आपको टेम्परेचर यूज़ होगा, बहुत एनर्जी लगेगी. तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो मेटल्स का है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है ना. इजीली वो मेल्ट नहीं होती है, आयरन को आप इजीली मेल्ट नहीं कर सकते, ऐसे इजीली बॉयल नहीं कर सकते. तो देखो मोस्ट ऑफ द मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मेकिंग देम सॉलिड. जो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, इनको क्या बनाता है, ये इनको सॉलिड बनाता है रूम टेम्परेचर. तो देखो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, आयरन 1535 डिग्री सेल्सियस पे जाके आयरन मेल्ट होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट तो इससे भी ज़्यादा है. देखो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बट आयरन का 2862 डिग्री सेल्सियस पे इस टेम्परेचर पे जाके आयरन क्या होता है,
बॉयल होना स्टार्ट करता है। तो ये रीजन क्या है इसका, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मेटल। ये बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, हाई इनका बॉइलिंग पॉइंट। बट देयर इज एन एक्सेप्शनल केस, मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल। तो मर्क्यूरी हमें पता है नॉर्मली लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, अप्रॉक्सीमेशन में -39 डिग्री सेल्सियस पे ही मर्क्यूरी मेल्ट हो जाता है। सिमिलरली सोडियम एंड पोटेशियम भी क्या है, दे आर सॉफ्ट इन नेचर। तो सॉफ्ट होने के कारण क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो हो जाता है। सोडियम हैज़ 98 डिग्री सेंटीग्रेड एंड पोटेशियम है 64 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट। देयर आर सम मेटल्स जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे, वैसे तो नॉर्मली अगर हम रूम टेम्परेचर पर बात करें, दे आर इन सॉलिड इन नेचर, बट जस्ट टू गेट द हीट फ्रॉम योर पाम, आपके हाथ की गर्मी से, अगर आप उसके हाथ पे रखते हो और आपके हाथ की गर्मी से वो क्या होना चाहते हैं, दे स्टार्टेड टू मेल्ट। सीजियम और गैलियम आर दी मेटल्स विच हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट। तो सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 28.5 डिग्री सेल्सियस होता है, गैलियम का से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 29.76 डिग्री होता है, और कैन बी मेल्ट बाय योर हैंड। अगर आपने हथेली पे रखा, इतनी सी हीट से वो मेल्ट हो जाती है। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ वी विल स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल का जो एक्चुअली नेचर होता है जस्ट अपोजिट होता है मेटल से, ठीक है, इसलिए हमने उनको नॉन मेटल बोला कि जो मेटल नहीं है, विच आर नॉन मेटल, तो वो नॉन मेटल है। तो बेसिकली क्या क्या नेचर होगा, थोड़ा सा अपोजिट ही है। तो देखेंगे हमें पता है मेटल क्या है, दे हैव अ लस्टर प्रॉपर्टी, वो चमकती है। नॉन मेटल इसका जस्ट ऑपोजिट है, यानी कि दे हैव नॉन लस्ट्रस प्रॉपर्टी, दैट मीन्स दे हैव अ डल अपीयरेंस, उनमें कोई चमक नहीं होती है एज सच, जैसे मेटल के पास होती है, यानी कि इनके पास डल अपीयरेंस होती है। देयर इज एन एक्सेप्शनल केस जो आपको याद रखना है, आयोडीन इज अ मेटल विच हैज अ शाइनी एंड मेटेलिक अपीयरेंस। इट इज ओनली नॉन मेटल विच हैज अ शाइनी अपीयरेंस। बाकी जितनी भी नॉन मेटल्स हैं उनकी अपीयरेंस डल ही होती है। ठीक, देखो नॉन मेटल के एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो, सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन गैसेस तो होती हैं सारी नॉन मेटल। इसके अलावा सॉलिड नॉन मेटल्स ये हो गई, और इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज ब्रिटलनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिटलनेस? ऑन हैमरिंग इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू अ, इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू अ थिन शीट, इट विल ब्रेक डाउन। अगर आप उसके ऊपर हैमर से चोट करोगे तो वो क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। ठीक है, तो आपने देखा होगा कोल व्हाट इज कोल? कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन। थोड़ा सा भी आप उसको हैमरिंग करोगे तो आप देखोगे कोल क्या होगा, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। नाउ द नेक्स्ट physical property of non-metal is they have a low melting point and boiling point। तो देखो जनरली जितनी भी नॉन मेटल्स होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा लो होता है। देयर इज एन एक्सेप्शनल, देखो देयर इज अ डायमंड, डायमंड इज एक्सेप्शनल। एक्चुअली व्हाट इज द डायमंड? डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है, देखो कार्बन के अलग अलग एलोट्रॉप्स होते हैं। देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स मीन्स की उसकी फॉर्म है और अलग अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो 3 एलोट्रॉप होते हैं कार्बन के, which are graphite, diamond and Buckminster fullerene। ये 60 कार्बन का एक क्लस्टर होता है, फुटबॉल जैसी शेप का होता है, तो ये एक डिफरेंट केस है। अभी हम इसकी बात करेंगे। तो इसको दो जो फॉर्म है, ग्रेफाइट फॉर्म है जो आपकी पेंसिल में होता है, और डायमंड जो ज्वेलरी में यूज होता है। ठीक है, तो डायमंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन ऑन द अर्थ। तो डायमंड जो होता है वो एक्सट्रीमली हार्ड होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसमें सारे बॉन्ड, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सारे के सारे 4 कार्बन नेक्स्ट 4 कार्बन से बॉन्डेड रहते हैं विद अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट स्ट्रक्चर। तो डायमंड क्या होगा, बिल्कुल हार्ड नेचर का, बहुत ज़्यादा हार्ड नेचर का होगा। और दैट्स वाई अगर ये हार्ड नेचर का है तो क्या होगा, ये इट हैज़ एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो कितना होता है डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट, अप्रॉक्सीमेशन में 3550 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज दे आर जनरली सॉफ्ट। तो आपने देखा होगा कि सॉफ्ट है, हमने कहा ब्रिटल है, सॉफ्ट तो है ही, तभी तो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट होते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर। कार्बन का जो कोल फॉर्म में ले लो, आपके कोल ले लो या फिर ग्रेफाइट ले लो जो आपकी पेंसिल में होता है, अगर आप उसको ईजिली ब्रेक कर सकते हो। ऐसे ही सल्फर पाउडर फॉर्म में देखो, है ना, ईजिली ब्रेकेबल है। देयर इज also an exception which is the diamond. Diamond is a non-metal, it is a form of carbon. Next physical property of metal is they are poor conductor of heat and electricity.
they don't have a free electron in them. ओके तो फ्री इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस होने के कारण इनके अंदर चार्जेस फ्लो नहीं हो पाते हैं और करंट भी शो नहीं करते हैं. तो मोस्ट ऑफ द नॉन मैटर आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बट देयर इज एन एक्सेप्शन. अभी मैंने बताया था कि कार्बन के देयर आर 3 allotrope ऑफ द कार्बन इन विच graphite is a good conductor of electricity because in the structure of graphite there is a free electron in them. That's why वो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है. देखो यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट कि आप बैटरी से 2 पेंसिल को से आगे एक एलईडी कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि ये क्या कर रही है. जो पेंसिल लीड है यानी कि इसके अंदर क्या है, ग्रेफाइट है. ग्रेफाइट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा है और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, ये एलईडी बल्ब ग्लो कर जाएगा. दैट मीन्स ग्रेफाइट शो कंडक्शन. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज दे हैव अ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. मतलब ये लोड बियर नहीं कर सकती. जैसे आप इनके ऊपर कोई लोड डालोगे ये दे विल ब्रेक. ओके सो दिस इज द प्रॉपर्टी. दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. इजीली यू कांट कन्वर्ट इनटू अ शीट और है ना. अगर आपने इस पर कोई भी वेट रख दिया तो दे विल ब्रेक. Next property is they are non-sonorous, means if they struck with something they will not produce a ringing sound. Okay. नेक्स्ट इज लो डेंसिटी. देखो नॉन मेटल्स जो हैं उनकी डेंसिटी भी लो होगी. लो क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है वो सॉफ्ट हैं, ब्रिटल हैं और इतने हैवी नहीं है. वो लाइट सब्सटेंस है, दैट्स व्हाई इनकी डेंसिटी क्या होगी, लो होगी. देयर इज एन एक्सेप्शनल केस कि डायमंड जो है वो काफ़ी डेंस होता है, रिजिड होता है हार्ड होने के कारण. मैंने बताया जस्ट बिकॉज क्या होता है उसमें पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं और स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं विद द कोवेलेंट बॉन्ड्स इन बिटवीन दैम. ओके तो ये डेंस होता है. तो देखो डेंसिटी कार्बन की जो होती है 3.50 होती है. वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. देखो डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी हमें पता है कि किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना ग्राम चीज़ आ सकती है ना. अगर हम यहाँ देखें तो हम इस तरह से काउंट करते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर है ना. अगर हम क्यूब बनाए 1 सेंटीमीटर क्यूब एक बॉक्स बनाए तो उसमें हम कितना ग्राम मास उसमें हम रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी. तो देखो वाटर के केस में हम 1 ग्राम वाटर अगर हम रखें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में वो आ जाएगा. बट अगर हम कंपेयर करें डायमंड को तो हमें 3.5 ग्राम चाहिए जो कि 3 टाइम्स ऑफ द वाटर है. एक इतना क्यूब में आपको 3 ग्राम डायमंड चाहिए होगा, तो इट इज़ अ वेरी डेंस. Next we will see the difference between the physical properties of metals and non-metals. Luster. On the basis of property luster, metals are shiny and lustrous, but non-metals are dull except iodine. Iodine is a non-metal which has a lustrous property. State अगर हम बात करें room temperature पे, most of the metals are solid at room temperature except mercury. Mercury is found in a liquid form in non-metal, but in non-metal they are found in some non-metal are found in solid, some are liquid and some are in gaseous form. Okay, तो गैस लिक्विड फॉर्म में एक ही नॉन मेटल होगा which is bromine. Malleability की बात करें, metals are malleable, can be converted into a thin sheet on beaten. Okay, but non-metals are brittle, they can't be converted into a thin sheet. Okay, except graphite. Ductility. They are ductile, can be drawn into a thin wire, but they are non-ductile, can break in easily. Conductivity की बात करें, they are good conductor of heat and electricity. Non-metal, in case of non-metal, they are poor conductor of electricity except graphite. Melting point, metals have a high melting point and boiling point. In non-metal, low melting point and boiling point is there except diamond because it is hard non-metal. Hardness, if talk about hardness, they are generally hard but they are soft in nature. There is one more exceptional case which is diamond. Diamond is not soft, it is the only non-metal which is hardest. Density की if we talk about density, they are high in density. सारे metals क्या होते हैं, solid होते हैं और high density वाले होते हैं. But if we talk about non-metal, they have low density except diamond. Okay students, this was all about the physical property of metals and non-metals. I hope you enjoyed the lecture. In next lecture we will see the chemical properties of metals and non-metal. I hope you enjoy the lecture. Please like and share this video and subscribe our channel Dabit Academy. Thank you so much.